لکل حمد یا اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وعلماء ملتہ وشہداء حضرتہ وابنہ الغوث العاظم الجیلانی وامام احمد رضا خان بریلوی۔ ابھی واٹس ایپ پر مولانا تنویر ہاشمی کے کچھ مریدین ایک میسج پھیلا رہے ہیں میرے تعلق سے۔ ان کے مدرسے میں کوئی مصباحی صاحب ہیں، انہوں نے میرے تعلق سے ایک مباہلے کا میسج بھیجا ہے۔ بہت افسوس کا مقام ہے اور مجھے کہنا پڑ رہا ہے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم یوں فریاد کرتے، نہ کھلتے یہ راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ صوفی کانفرنس کریں آپ، صلح کلیت کا ننگا ناچیں آپ، حق بولنے والوں کا رد کریں آپ، حق کو سننے سے کان بند کریں آپ، اور ماشاءاللہ حق گو پر آپ تبرہ بھی کریں، بہتان بازی بھی کریں، اور اوپر سے پوری سینہ زوری کے ساتھ مباہلے کی دعوت بھی دیں۔ چلیے، میں نے آپ کی دعوت مباہلہ قبول کیا، ٹھیک ہے، لیکن پہلے یہ تو بتائیں میرے جو مخاطب تھے انہوں نے کیوں نہیں دعوت دی؟ اور جو لوگ واٹس ایپ پر سوشل میڈیا پر مباہلے کی دعوت دے رہے ہیں، کیا انہوں نے مولانا تنویر ہاشمی سے بات کی اور انہوں نے ان کو اجازت دی کہ آپ کلیم حنفی رضوی کو میری طرف سے مباہلے کا چیلنج دیں؟ تو جب یہ لوگ اتنا نہیں جانتے ہیں کہ صاحب معاملہ کو خود رجوع کرنا چاہیے معترض سے، یہ بیچ کے جو چیلے چاپڑ ہیں، چمچے ہیں، اکڑچے ہیں، ان کو چاہیے کہ پہلے خود مولانا تنویر ہاشمی سے بات کریں کہ آپ کے اوپر جو چھیٹا کشی کی گئی ہے اس کا تصفیہ آپ کریں۔ مسئلہ ان کے سید یا غیر سید ہونے کا نہیں ہے۔ اب خود بیجاپور کے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ علوی ہیں، سید نہیں ہیں۔ میں بیجاپور کے لوگوں کی گواہی دیتا ہوں، میرے پاس وہ لوگ موجود ہیں۔ پھر لوگ یہاں تک بتاتے ہیں کہ ماشاءاللہ حضرت اتنے پہنچے ہوئے پیر ہیں کہ کرناٹک میں کوئی ان کے خلاف زبان کھولے تو اس کی اچھے سے دھلائی کی جاتی ہے۔ تو یہ کون سی صوفیت ہے؟ یہ صوفیت تو ہماری سمجھ سے اوپر ہے۔ ایک طرف تو ان کے مجدد صاحب یعنی نجیس الپادری صاحب کہتے ہیں کہ صوفیہ نے کبھی کسی کو کافر نہیں کہا، کبھی کسی کو بھگایا نہیں، دھٹکارا نہیں، اور ماشاءاللہ ان کا یہ حال ہے کہ جو ان کے خلاف حق بولے اس کی یہ مرمت کرتے ہیں، دھلائی کرتے ہیں، اور پھر بعد میں سیادت کا رونا رونے لگتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھنے لگتے ہیں۔ نہ جانے کیوں لوگوں کو صرف اپنے فضائل میں اعلیٰ حضرت کا شعر ہی یاد آتا، اعلیٰ حضرت کی ساری تعلیمات سے منہ موڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں سرکار اعلیٰ حضرت نے وہابی دیوبندیوں کے پرخچے اڑا دیے اور ان خبثاء کا اتنا زبردست رد کیا، ان کی اقتداء کو، ان کی امامت کو، ان کی استاذی کو، ان سے ہر قسم کے تعاون کو حرام، سخت حرام فرمائے۔ یہ ساری چیزیں لوگ کیوں بھول جاتے ہیں؟ اور جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کا سب سے بڑا منکر ہے اس زمانے میں خبیث اعظم نجیس الپادری، جو کہتا ہے کہ ہر مسلک والے کے پیچھے بلا کراہت نماز ہوتی ہے، آپ اس کو اپنے جلسے کا مہمان خصوصی بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ اور جب پیر ثاقب شامی صاحب نے کہا کہ بھئی تم نے اپنی کتاب میں ایسا لکھا اور عمل اس کے خلاف ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اہل علم کی طرح پیر ثاقب شامی صاحب کا تسلی بخش جواب دیتے، نہ یہ کہ ان کو رسوا کرتے، ذلیل کرتے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، ورنہ یہ کنایتن معاذ اللہ رب العالمین دھمکیاں دینا۔ کم سے کم سادات کرام کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی باتیں کرے، اور صوفیہ کو تو بالکل زیب نہیں دیتا ہے کہ اس قسم کی باتیں کریں۔ میرا مسئلہ مولانا تنویر ہاشمی سے ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ سید ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہیں تو ان کے بھلے کے لیے، اور ہوں تو میرا ان سے کیا لینا دینا ہے؟ نہ میں ان کا استاد ہوں، نہ ان کا شاگرد ہوں، نہ ان کا پیر ہوں، نہ ان کا مرید ہوں، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بنام سنیت اعلیٰ حضرت کے نام کی آڑ لے کر، بزرگوں کے نام کی آڑ لے کر جو ڈھونگ رچا گیا ہے رام لیلا میدان میں، اس کے تعلق سے ہمارے کچھ سوالات ہیں۔ مولانا تنویر ہاشمی سے میں کہوں گا کہ
जिस तरह आपने फिलफौर ताबड़तोड़ साकिब शामी साहब का जवाब देना जरूरी समझा, वैसे इस फकीर हनफी मोहम्मद कलीम हनफी रजवी के भी चंद सवालात हैं, आप उसका जवाब दें। आप ये न सोचें कि आप आज मेरे मुअल्ला में बुलाएंगे तो मैं ये हरगिज नहीं सोचूंगा कि मैं कैसे जाऊं। बिहम्दिल्लाह मुझे अपने ख्वाजा की ज़ात पर पूरा भरोसा है, कोई मेरा बाल बेका नहीं करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर जानने वाले जानते हैं, हजारों मजमे आदा में अकेला डटा रहा, चेहरे पर एक शिकन नहीं आई, जरा सा भी मुझे हुज्न और मलाल नहीं हुआ और न कभी होगा। एक जान है राह खुदा में चली जाए, कभी इसकी मैं परवाह नहीं करता। अगर मौलाना तनवीर हाशमी साहब अजमेर मुअल्ला का इंतखाब करते हैं तो बिहम्दिल्लाह हम वहाँ आने को तैयार हैं। अगर वो बीजापुर का इंतखाब करते हैं तो मैं वहाँ भी आने को तैयार हूँ, और अगर वो बम्बई तशरीफ लाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। मेरे मकान पर या मेरे इदारे में या मेरे ऑफिस में, जहाँ वो बेहतर समझे, उनसे रूबरू बैठकर मुज़ाकरा होगा, बात होगी। अगर वो मुबाहला करना चाहते हैं तो पहले मुझसे मुबाहले के ताल्लुक से जो लवाजिमात है, जो उसके मुताल्लिकात हैं, उस पर बात करें और तमाम दस्तखत वगैरह के साथ इंशाअल्लाहुर रहमान फ़कीर मुबाहले के लिए भी तैयार है। मेरा मौक़िफ़ यह है, मसलके हक़ अहले सुन्नत व जमाअत की हकीकी पहचान मसलके आला हजरत है, और हर बद मजहब का रद्द करना फ़र्ज़ आज़म है, और वहाबिया दयाबना ख़ज़लहुमुल्लाहु ताला खारिज इस्लाम है, और उनकी इख्तिदा को जायज़ कहने वाला भी उन्हीं के हुक्म में है, और उसे मुजद्दिद वगैरह कहने वाले सख्त किस्म के गुनहगार लोग हैं जो गुमराहियत की राह पर चल रहे हैं। ठीक है, जो मेरा मौक़िफ़ है मैं उसको वाज़ेह तौर पर लिखूंगा। आप मुज़ाकरा करना चाहें मुज़ाकरा करें, मुनाज़रा करना चाहें मुनाज़रा करें, मुबाहला करना चाहें मुबाहला करें। बात क्या थी, उसे रुख क्या दिया गया। कह रहे हैं साहब सूफी कलीम ने उनके नसब का इनकार किया। अब अगर कोई ये कहे कि भाई बहुत से लोगों की माँ खता कर जाती है और खता करने से वो उसका नसब गायब हो जाता है, तो उसमें कुछ रजील हरकतें पैदा हो जाती है जो शराफत नसबी के खिलाफ होती है, तो उसे मुख्तस कर देना कि आपने फलां को ही कहा, ये तो आपकी मेरे कलाम से छेड़छाड़ है और मुतकल्लिम के माना को आप गलत माना पहना रहे हैं। तो इसकी तो मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा कि आप मेरे कलाम को गलत माना पहनाएं। ठीक है, मुझे आपकी सियादत से कोई लेना देना नहीं है। आप सैयद हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हजरत पर हैं तो हम आपके पैर धोकर पिएंगे, लेकिन अगर आप ऐसे बदमजहबों की गुमराहों की दोस्ती करेंगे तो फिर मेरे दिल में आपकी एक पैसे की कदर नहीं होगी। मैं रसूलुल्लाह के हुक्म का पाबंद हूँ, इमाम अली मकाम के हुक्म का पाबंद हूँ, अहले बैत नबूवत के अफराद की इज्जत करता हूँ, लेकिन उन्हीं लोगों की जो खुदा व रसूल के फरमाबरदार हैं, और जो लोग खुदा व रसूल के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, भला बताइए उनसे हम क्यों ताल्लुक़ रखें। ठीक है, सैयद हैं माशाअल्लाह, उनके फ़ायदे के लिए, उसमें हमारा अपना क्या फ़ायदा है। हर मुसलमान लायक ताज़ीम है, हर सुन्नी लायक ताज़ीम। ये थोड़ी कि सारी फजीलतें सैयदों को ही हासिल हो गई, जो सैयद ना हो माज़अल्लाह दूसरी कौम से उसको कोई फजीलत ही नहीं है। वरना हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के रसूल ने क्यों फरमाया, अला इन्ना रब्बकुम वाहिदुन, तुम सब का रब एक है, तुम सब का बाप एक है। आज के बाद ला फज़ल लिल अरबिय्यिन वला अजमिय्यिन, आज के बाद किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है। अल्लाह के नज़दीक मुक़र्रब वो है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जिसके पास तकवा है, परहेजगारी है। अल्लाह ताला परहेजगारी और तकवा को देखता। हर मुसलमान लायक ताज़ीम है, हर सुन्नी लायक ताज़ीम है, हर आलिम दीन जो हक बोलता है लायक ताज़ीम है। लेकिन लोग ये सब भूल भाल के ये समझते हैं कि सारी फजीलतें सैयदों को है, और जो सैयद ना हो माज़अल्लाह वो चोड़ा चमार से बदतर है। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा मेरे वारिस हैं। उलमा को भी बहुत फजीलतें हासिल है, सादात को भी फजीलतें हासिल है, हर सुन्नी मुसलमान को किसी न किसी दर्जे में फजीलत हासिल है। तो ये मसला नहीं है आपके नसब का, आप सैयद हों ना हों। हमने आपसे क्यों सवाल किया, हम अभी तक आपको अपना समझ रहे थे, इसीलिए सवाल कर रहे हैं कि सूफी कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ 4 दिन के अंदर, मोदी साहब की शान में कव्वाली पढ़ी गई, नजीसुल पादरी को बुलाया गया, पीर साकिब शामी साहब का रद्द किया गया, और तो मर्दो जन का इख्तलात हुआ,
सालिक साहब फोटो खींच रहे हैं, बगल में औरतें बैठी हुई, ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे आई हुई हैं। इसके ताल्लुक से चंद सवालात मेरे हैं, आप आए मेरे पास या मैं आपके पास आऊं, बैठकर बात करें। उसके बाद आप मुबाहिला करना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर मोहम्मद कलीम हनफी उसके लिए राजी है। मुनाजरा करना चाहें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके लिए भी राजी हूं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, उम्मीद है मेरी गुजारिशात को, मेरी मारूजात को आप हजरात ने बखूबी समझ लिया होगा। अब इस सिलसिले में उनके मुरीदीन से मैं गुजारिश करूंगा कि मुझे फोन करके गालियां देने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। आप गालियां दोगे, मैं फोन ऑन करके बाजू में रखूंगा, मेरी नेकियों में इजाफा होगा, आपका बैलेंस कटेगा। संजीदगी के साथ मसले को समझें। वहाबी देवबंदियों के साथ इतनी हमदर्दियां दिखाते हो और कोई किसी सैयदजादे को गलत काम करने से रोके तो उसे खारजी, जहन्नमी, दुश्मन अहले बैत और यजीदी कैसे कैसे अलकाब से माशाअल्लाह आप लोग नवाज देते हैं। और फिर आपको आला हजरत याद आने लगते हैं कि आला हजरत ने ऐसे फरमाया। अरे मेरे आला हजरत की बात करना हो तो हर मसले में बात करो, मेरे आला हजरत की तो शान ही निराली है। कोई भी रज़वी आला हजरत से अकीदत रखने वाला, गैर रज़वी भी जो सरकार आला हजरत से अकीदत रखता है, उनकी तालीमात पर चलता है, कभी किसी सैयद की तौहीन नहीं करेगा। हाँ, गलत काम करता देखेगा तो जरूर टोकेगा, जरूर बोलेगा, जरूर उनसे पूछेगा, और ये उसका हक है, ये आप उससे हक नहीं छीन सकते हैं। भाई हम सैयद हैं तो हम जो चाहें करें, सारी दुनिया हमारी गुलाम है, सब चोड़ा चमार से बदतर है, हमको बिल्कुल इख्तियार कुल्ली हासिल है, ऐसा नहीं हो सकता है। जनाबे मन, जरा सा आप संजीदगी से काम लें, सोचें, और मेरी ये गुजारिशात सैयद तनवीर हाशमी साहब तक पहुंचाई जाए। तनवीर हाशमी साहब खुद सुने, वो बराह रास्त मुझसे बात करें, उनके चेले चापड़ बात करेंगे, उसको तरजीह नहीं दी जाएंगे। सोशल मीडिया पे मैसेज फैलाएंगे, उसको हम अहमियत नहीं देते हैं। मेरा मामला अगर तनवीर हाशमी साहब से है तो तनवीर हाशमी साहब बात करें, और अगर नहीं करते हैं तो 3-4 दिन के बाद मेरे क्या सवालात हैं, मेरी क्या गुजारिशात हैं, मेरे क्या मारूजात हैं, सूफी कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुझे क्या कहना है, इंशाअल्लाहुर रहमान 3-4 दिन के बाद मैं डालूंगा। अब अगर वो उस ऑडियो को सुनकर जवाब देना चाहें ऑडियो में तो वो भी अच्छी बात है, मैं 3-4 दिन तक का उसका वेट करूंगा। मुबाहिले की जहां तक बात है तो मुझे चूंकि मेरे जो मुखातिब थे तनवीर हाशमी साहब, उनका मुझे कॉल नहीं आया। चेले चापड़ों को मैं अहमियत नहीं देता हूं, ठीक है, तो वो खुद कहते हैं तो अच्छी बात है, वो मुझसे राब्ता करें।